ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس انسپکٹر ادریس عالم بنگش اور اہلکاروں کی عیادت کے لیے آغا خان ہسپتال پہنچے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیس مقابلوں میں پولیس انسپکٹر سمیت 3 اہلکار زخمی ہوئے جبکہ 1 اہلکار شہید ہوا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا کہنا تھا کہ ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہونے والے شہریوں کا افسوس ہے، پولیس اپنے فرائض سے غافل نہیں، امن و امان کے قیام کے لیے پولیس دن رات کام کر رہی ہے۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 104 شہری اپنی جانوں سے گئے جبکہ رواں سال پولیس مقابلوں میں 122 ملزمان مارے گئے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے میں پہنچے تو دوبارہ ان کی مدبھیڑ ہوئی پولیس والوں سے، جس میں دونوں کے دونوں مارے گئے۔ ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ جو آفیسر تھے جو سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں کسی کام پہ، سرکاری کام سے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے کسی پرسنل دوست سے ملنے آئے تھے، وہاں پہ ان کی مدبھیڑ ہوئی کرمنل سے، جس میں ان کو گولی لگی۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جوان مردی کا مظاہرہ کیا اور اس نے نہ صرف اس کرمنل کو پکڑ لیا زخمی حالت میں، بلکہ اس کی نشاندہی پہ پھر ہم نے دوسرا کرمنل جو اس میں اس کے ساتھ انوالو تھا اس کو بھی پکڑ لیا۔ جو شروع میں ہوا کورنگی تھانے کے حدود میں، اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی گرفتار کریں گے، جس کی وجہ سے ایک شہری کی جان گئی۔ 104 سے زیادہ کرمنلز ہم نے مارے ہیں اس سال اور تقریباً 998 قریب ہم نے زخمی حالت رکھی ہیں۔ اگر ٹوٹل کرمنلز جو گرفتار ہیں وہ 8000 زیادہ ہیں۔ کورنگی میں ڈکیتی کے دوران 20 سالہ نوجوان قیوم قتل کر دیا گیا۔ مقتول گھر کا کفیل تھا، ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں کی کفالت کا بیڑا اٹھائے کم عمری سے ہی محنت مزدوری میں مشغول رہتا تھا۔ ڈاکوؤں نے چند ہزار کے موبائل فون کی خاطر گھر کی دہلیز پر ہی گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ دانیال سید کی رپورٹ۔ کراچی میں ایک اور نوجوان گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا۔ چند ہزار روپے کے موبائل کے عوض ڈاکوؤں نے نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوائقین کا کہنا ہے کہ مقتول 20 سالہ قیوم ماں باپ کے انتقال کے بعد بہن بھائیوں کا واحد کفیل تھا۔ صبح گھر سے موٹر سائیکل نکال کر کام کے لیے نکلا تو ملزمان نے لوٹ مار کے دوران گولیاں مار کر قتل کر ڈالا۔ ملزمان کی CCTV فوٹیج سٹی 21 نیوز نے حاصل کر لی۔ ہر روزانہ بندہ ہی کم ہو رہا ہے، ہمارے لوگ کم ہو رہے ہیں بیچارے، ہمارے محلے والے کم ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر روز نیا واقعہ ہوتا ہے بھائی۔ یہ لوگ آتے کہاں سے بھائی؟ تو کوئی پوچھے آ کہاں سے رہے ہیں؟ صبح یہ 7:45 بجے یا 8 بجے کا اپنے گھر سے باہر نکلے، اتنی دیر میں کچھ لوگ آئے بائک کے اوپر۔ اب وہ ڈگیٹ ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے اس سے موبائل وغیرہ چھینا، کی پیڈ والا موبائل تھا، تو موبائل انہوں نے اس سے لینے کے بعد پھر واپسی دے دیا۔ جب وہ ریٹرن جانے لگے تو دروازے بھی کھڑا ہوا تھا نا، ان کو ڈر یہ تھا کہ شاید میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، ڈکیت تو نہیں سوچا، لیکن وہ 2 گھر کے بعد انہوں نے وہاں سے کھڑے ہو کے فائر چلایا۔ جو فائر چلایا وہ فائر اس کو یہاں کمر میں لگا، وہ فائر کمر میں لگتے ہی وہ بچہ جو ہے یہاں گر گیا اور آن دا اسپاٹ ہی یعنی کہ وہ سانسیں اس کی تھی، چلتے چلتے وہاں پر ایکسپائر ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں اور لوائقین کا کہنا ہے کہ پولیس اور متعلقہ ادارے علاقے میں جرائم روکنے کے لیے اقدامات کریں، بصورت ڈاکوؤں کے ہاتھوں کئی دیگر گھروں کے چراغ بھی گل کیے جائیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے کورنگی میں جاں بحق نوجوان کے ورثاء نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مقتول اظہر مسعود کے والد مسعود اختر اور بھائی حماد مسعود اور دیگر شامل تھے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ اس طرح کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ کامران خان ٹسوری نے تحقیقات میں پیش رفت کے حوالے سے ورثاء کو آگاہ کیا۔ مقتول کے والد اور بھائی نے تحقیقات پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ واقعے میں ملوث مجرمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کا کہنا تھا کہ جج کا کردار بلا خوف اور بہادری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ بار کے تعاون کے بغیر انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہو سکتی۔ عدالت عالیہ میں جسٹس آفتاب احمد گورر کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ سمیت ہائی کورٹ کے ججز، ایڈوکیٹ جنرل سندھ حسن اکبر، پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیض ایچ شاہ، کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر اشفاق گلال، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سلیم منگریو اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ For the future of the life and my fellow learned friend as to how to conduct the legal proceeding in the proper and just manner.
फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख का कहना था कि मुआशरे में इंसाफ की फरहमी के लिए सरकारी महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और इन महकमों में करप्शन का खात्मा जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरियों में शफाफियत के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। बेंच और बार के ताउन के बगैर इंसाफ की फरहमी मुमकिन नहीं। No doubt in my mind that his very successful career, first as a lawyer and as a judge, apart from his own hard work, is also due to the prayers of the people he helped on merits. जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर ने गुफ्तगू करते हुए साथी जजेस और वकला का शुक्रिया अदा किया। Say that retirement is one of the milestones of life, and important thing is what a person achieved during his tenure, leaving behind these pleasant and bitter memories. और कुछ आगे मैं कहूँगा पहले तो ये कि आप सब भाइयों का प्यार देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं कह रहा हूँ कि वाकई मैंने कोई ऐसा काम किया था। 1 जनवरी 1961 को लाड़काना में पैदा होने वाले जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर 27 अक्टूबर 1991 को हाई कोर्ट में बहैसियत वकील जबकि 6 अक्टूबर 2008 को सुप्रीम कोर्ट के वकील इनरोल्ड हुए। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर 27 जून 2012 को हाई जज बने। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि ये 100% सच बात है कि बंदरगाहों पर बड़ी तादाद में दरामदी कंसाइनमेंट फंसे हुए हैं। नायब सदर हारिस ने कहा कि कंसाइनमेंट जल्द क्लियर ना हुए तो कीमतों में 30 से 40% तक इजाफा होने का खदशा है। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर का बुरहान, सरमायाकार परेशान, दरामदी खाम माल की क्लियरेंस का मसला संगीन हो गया। कराची चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के नायब सदर हारिस आगर ने कहा है कि ये 100% सच बात है कि बंदरगाहों पर बड़ी तादाद में दरामदी कंसाइनमेंट फंसे हुए हैं। डॉलर की किल्लत की वजह से बैंक दरामदी कंसाइनमेंट की दस्तावेज क्लियर नहीं कर रहे। ये भी शिकवा किया कि अब बहुत से दरामदी कंसाइनमेंट क्लियर ना होने पर कस्टम की नीलामी के नोटिस आ रहे हैं। बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं रिलीज कर रही और फिर कस्टम्स के नोटिस आ रहे हैं कि भाई आपका कार्गो अब ऑक्शन करना है। तब वो अगर छुड़ा ही नहीं सक रहे, वो विलिंग है छुड़ाने के लिए, अब उनको नोटिस आ रहे हैं कि आपका कार्गो ऑक्शन कर दें, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हलचल मच जाएगी, इसमें बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो एक इंटर कनेक्टिविटी चाहिए कि अगर एक बिजनेसमैन पोर्ट को कह रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बैंक नहीं रिलीज कर रहा, तो उनको फिर इस तरह के नोटिस तो नहीं आने चाहिए कि आपका कार्गो ऑक्शन कर दें या क्या है। नायब सदर कराची चैम्बर ने मजीद कहा कि दरामदी अजनास में दालें और दीगर माल अगर जल्द क्लियर ना हुए तो कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अभी जिस तरह की दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं उसमें 30-40% तक ईजिली इफेक्ट आ सकता है, विच कुड बी मोर। लेकिन अब यहाँ हम ऐसी सूरत हाल में खड़े हैं जिसमें इस चीज़ पे नज़र डालने की बहुत शिद्दत ज़रूरत है कि एटलीस्ट एसेंशियल्स को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, नॉन एसेंशियल्स को बाद में देखें, लेकिन एसेंशियल्स जो हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। कराची चैम्बर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरामदी अजनास की कंसाइनमेंट बंदरगाहों से जल्द क्लियर कराने के लिए इकदाम उठाए। मैं कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद के 30 से ज़ायद ट्रैफिक सिग्नल्स के इलेक्ट्रिक वायर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो ने डीआईजी ट्रैफिक को वायर चोरी करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया है। समर अब्बास की रिपोर्ट। चोरों ने ट्रैफिक सिग्नल के इलेक्ट्रिक वायर भी नहीं छोड़े। केडीए के ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो कराची की जानिब से लिखे गए खत में बताया गया है कि शहर भर के सिग्नल से नशे के आदी अफराद और मुनज़्ज़म गिरोह इलेक्ट्रिक वायर चोरी कर रहे हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिग्नल पर इलेक्ट्रिक वायर चोरी होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। खत में इन 3 सिग्नल्स की निशानदही की गई है जिनसे वायर चोरी हुए और पुलिस की जानिब से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सिटी 21 पर ट्रैफिक सिग्नल की खबर नशर होने के बाद आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी कहते हैं कि शहर भर में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है। अब ट्रैफिक सिग्नल से इलेक्ट्रिक वायर भी चोरी हो रहे हैं। अब जैसे कि इंकशाफ हुआ है कि कराची में 30 से ज़ायद ट्रैफिक सिग्नलों की वायर चोरी हो गई है। हमें समझ में नहीं आता कि कराची की पुलिस कर क्या रही है। पूरे शहर को स्ट्रीट क्राइम की जो शरह जिस तरीके से बढ़ी हुई है, और कहा जाता है क्या नाम एडिशनल आईजी साहब की तरफ से कि ये जो है आप उनसे मज़ाहमत ना करें। अब ये पूरा शहर हिरोनचियों के हवाले, मवालियों के हवाले कर दिया गया है। क्या आखिर इस शहर का कोई तो वारिस होगा?
ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के मुताबिक शाहीन कॉम्प्लेक्स, रीगल चौक, सिंगर चौरंगी, अल्लाहवाला शहर कायदीन, डैन सोहाल, एम ए जिना रोड, तायर विला FB एरिया के सिग्नल से चोर वायर ले उड़े। कम्प्रीहेंसिव स्कूल, FB एरिया, पैराडाइज बेकरी, अबुल हसन सफानी रोड, बनौरी टाउन, गुरु मंदिर, मक्की मस्जिद, ग्रामर स्कूल सदर, न्यू चाली, शहर लियाकत व दीगर के सिग्नल के इलेक्ट्रिक वायर भी चोरी हो गए हैं। समर अब्बास, सिटी 21। शुजाबाद से फरार होकर कराची पहुंचने वाले बच्चे अपने मोहसिन की शफकत के असीर हो गए। बच्चों ने सगे वालिदैन के पास वापस जाने से इनकार कर दिया है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी इस वक्त हम मौजूद हैं किमाड़ी के इलाके के अंदर, और किमाड़ी का इलाका ज़िला किमाड़ी का थाना इत्तेहाद टाउन की हदूद में जो है वो कुछ रोज़ कबल जो है वो बच्चे मिले, यानी कि कराची पहुंचे, और गुज़िश्ता रात जो है वो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पता चला कि वो 3 बच्चे शुजाबाद से जो है वो अपने घर से निकले और ट्रेन में सवार होने के बाद कराची पहुंच गए। उस वक्त उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि कौन है बच्चे, ये वाकई आपके बच्चे हैं तीनों, और ये किस इलाके के आप रहने वाले हैं, कैसे यहाँ पर पहुँचे थे? ये इनका पता तो नहीं लगा ये किस तरह यहाँ पहुँचे हैं भाईजान, लेकिन ये है कि मैं 3 दिन ढूंढती रही हूँ, मुझे कोई नहीं मिले। मैंने फिर आखिर दरख्वास्त दी है इनकी, और हम हैं मुल्तान के इलाके से, चौक फुआरा और शालीमार कब्रिस्तान की तरफ रहते हैं हम किराए पे। इनको बच्चों को ढूंढते ढूंढते मैंने आखिर दरख्वास्त दी ना, तो फिर भाई ने मुझे बोला कि इनकी वीडियो आई है कराची से, आप कराची से ले आओ। मेरे पे पैसे नहीं थे, बल्कि मुझे उन्होंने दबाव भी दिया कि आप ऐसे करो, पैसे इकट्ठे करके आप ले आओ जाके बच्चों को। मेरे पे गुंजाइश नहीं थी, मैं ऐसे ही ट्रेन में बैठ के आई हूँ। मेरे पे इस वक्त 50 रुपये हैं अभी भी। बिल्कुल जी, ये तीनों बच्चे जो है वो शुजाबाद से ट्रेन में सवार होकर यहाँ पर आए, और उनकी वालदा को जो है वो इनसे मिलाने के लिए शायद इकबाल जो है वो जरिया बने। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं तीनों, और हालांकि ये 3 बच्चे नहीं बल्कि मोहतरमा के 8 बच्चे, जिनमें से माशाल्लाह 5 जो है वो घर पर मौजूद हैं, इनसे बड़े भी और छोटे। ये इस वक्त ये बड़ा आज़ान और शाहनूर और फैज़ान है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बेटा मुझे बताएं कि क्यों आए घर से यहाँ पर आए तो तुम्हें कौन मिला था, कौन अपने साथ ले गया था? बेटा हम यहाँ पे आए थे मामू के पास नहीं पहुँच सके, ये वाले अंकल के पास आए थे, ये वाले बस में बैठे हुए थे, ये अपने घर ले आए हमें। कि इतने मुसाफत को तय करके जो है वो कराची जैसे बड़े शहर में पहुंचना, और उसके बाद ये हालांकि न्यू कराची जाना चाहते थे, लेकिन न्यू कराची के बजाय जो है ये लालू खेत पहुंचे स्टेशन कैंट से, और उसके बाद जो है ये इत्तेहाद टाउन पहुंचे। सब कैसे मिले थे, क्या चाहते हैं आप कि इनकी कफालत के लिए इनकी वालदा जो है इनकी ऑनरशिप ले और इनको साथ लेके जाए? मैं तो कहता हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप के पास ही खुश रहें, उन्हीं के पास जाएँ, उनके पास खुश रहें, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। मैं जितना भी अच्छा बन जाऊँ लेकिन रहूँगा फिर भी पराया। ये मैं आ रहा था अपनी ड्यूटी ऑफ करके, और ये मुझे आधी रात को मिले, तो मैंने बस अल्लाह के लिए जो मैं इनको ले आया अपने घर पे, और तब तक ही मेरे पास थे ये। फिर मैंने वीडियो शेयर की इनकी सोशल मीडिया पे दी, तो इनकी वालदा ने फिर देख ली वीडियो। कानूनी तकाजे जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, उसकी इसी सिलसिले में जो है इत्तेहाद टाउन पुलिस थाने में मौजूद हैं। तमाम बच्चे भी, इनकी वालदा भी, और जो खुदातर्स शहरी यानी कि शाहिद इकबाल भी यहाँ मौजूद हैं। अब इनके हैंड ओवर करके, और पुलिस ने भी जो है सालसी का किरदार अदा किया, बच्चों की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो है वो कुछ दिन अमानतन जो है वो इनके पास रखा, जहाँ पर बच्चों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, बच्चे जो है वहाँ पर से महफूज रहे। उसके बाद आज अपनी वालदा के साथ यहाँ से रवानगी होगी और इनकी वालदा के सपोर्ट किया जाएगा। जी आपको बताएं कि छठे एक्सीलेंस अवार्ड पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद गनी को बेस्ट लीडर अवार्ड से नवाजा गया। सैयद गनी कहते हैं, मैं लीडर नहीं एक कारकुन हूं और कोशिश करता रहूंगा, अपने खिदमत सरअंजाम देता रहूं। मजीद बताएंगे राहिल बेग। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सईद गनी साहब, जिन्हें आज अवार्ड से भी नवाजा गया है और बेस्ट लीडर का अवार्ड भी दिया गया है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, आपकी खदमात पर का एतराफ़ करते हुए आज अवार्ड दिया गया। तो सईद भाई, क्या मूवमेंट थे, क्या कहेंगे, शहर में इस तरह की तकरीबात कितनी अहम और ज़रूरी? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि मैं कोई लीडर नहीं हूँ भाई, मैं आम सा एक कारकुन हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने दी हैं, पार्टी ने दी हैं, हुकूमत ने दी हैं, उसको पूरा कर सकूँ। लेकिन बहरहाल अच्छा एक इवेंट है, और इसमें जो अच्छे ऑफिसर्स हैं जो अपनी खिदमत मुख्तलिफ़ शोबों में अदा कर रहे हैं, उनकी खिदमत को सराहा जा रहा है, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। एक अच्छा इवेंट है, इससे लोगों में इंकरेजमेंट होती है। बिल्कुल जी। सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इस तरह की तकरीबात खुश आइंद है और उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए अवार्ड का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। जी
शहर में बल्दियाती इंतखाबात का मेला सज गया है। तमाम ही जमातों के नुमाइंदे मैदान अमल में मौजूद हैं। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी की जानिब से गुलशन टाउन UC 8 से खिजर बाकी चेयरमैन के लिए नामजद किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला है वो कराची में एक बार फिर तारीख फाइनल होने के बाद चल पड़ा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जमात इस्लामी की जानिब से नामजद नुमाइंदे सैयद खिजर साहब मौजूद हैं जो गुलशन टाउन UC 8 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी जो UC है उसके अंदर कौन कौन से इलाके मौजूद हैं और कितने वोटर्स हैं यहाँ? देखिए, हमारी यूनियन कौंसिल में इस वक्त 37,000 वोटर हैं और हमारे पास जो है नेशनल स्टेडियम, एक्सपो सेंटर से बैतुल मुकर्रम मस्जिद, उर्दू यूनिवर्सिटी से सिंध बाग तक का पूरा इलाका है। तकरीबन 7 या 8 हैं और 37,000 वोटर्स हैं। और यहाँ पर मसाइल भी बहुत हैं यहाँ पर। उसी हिसाब से यहाँ पर समझे सड़कें टूटी हुई हैं, पानी बह रहे हैं, जगह जगह से सड़कें की बुरी हालत करी हुई है। लाइटें नहीं हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कराची लावारिस है और कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया और गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट अपनी कमाई कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क खोदी जाती है, उसके पैसे वसूल नहीं किए जाते उस डिपार्टमेंट से, बल्कि ऊपर से पैसे ले लेते हैं। इसमें पेश जो है पानी का डिपार्टमेंट जो है हमारा, वाटर बोर्ड और ये जो सारे हमारे डिपार्टमेंट इसमें मुलव्विस हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, हमारे साथ गुलशन इकबाल UC 8 से जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी की जानिब से लड़ रहे थे, खिजर साहब मौजूद थे। इनका कहना था कि अव्वलन तरजीहात में सेवरेज और पानी के मसले के साथ साथ जो इंक्रोचमेंट का मसला इस गुलशन टाउन का है उसको के अंदर शामिल किया जाएगा और जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की पोस्ट पर ज़मीर अब्बासी को बहाल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सेक्रेटरी SGA एंड CD को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। 1 दिसंबर को ज़मीर अब्बासी को सेक्रेटरी SLGB की पोस्ट से हटाया गया था। उनकी जगह नौरोज़ अब्बासी को सेक्रेटरी SLGB तैनात किया गया था। महमूदाबाद नाला इंतज़ामिया की जानिब से लावारिस छोड़ दिया गया है। नाला एक बार फिर कचरे से भर गया है। इंतजामिया की गफलत के बायस महमूदाबाद नाला कचरा कुंडी की अक्कासी करने लगा। कचरे के ढेर ने नाले की रवानी को मुतासिर कर रखा है, जबकि रिहायशी आने वाली बारिशों के पेश नजर परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कि इलाके में कचरा फेंकने का कोई इंतजाम नहीं, जिसके बायस लोग कचरा नाले में ही फेंक देते हैं। आवाम कहाँ फेंकेगी, कोई उसका बल्दियाती निज़ाम है नहीं। अब ये देखें सामने कचरा सारा पड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा कचरा? कोई गाड़ियाँ हैं नहीं, कोई डस्टबिन पड़े हुए नहीं है। बड़े वाले जब मोहल्ले वाले कचरा ला के बाहर गलियों से बाहर फेंकेंगे, एरिया सफाई वाले उठा के यहाँ फेंक देते हैं। उनको कोई सहूलत मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी सड़क की तामीर के लिए मलबा नाले के अतराफ में फेंक दिया है। ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो रही है। नाले में कचरा डालते रहते हैं। फिर ये रोड का बड़ी सूरत हाल ख़राब है। इस रोड के ऊपर इतना पूरी बाइकें मैंने खुद डूबती भी देखी हैं। यहाँ पर ये मलबा डालते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मलबा फेंकते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं। इस यहाँ रोड 2 साल के अंदर रोड एक दफ़ा नहीं डाला, मलबा 3 दफ़ा डल चुका है। होती है बच्चों को भी, तमाम अफराद को। और प्लस ये नाला जो है, नाले की कोई सफाई नहीं होती है। और बच्चों के लिए खेलने के लिए जो पार्क था ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट माफिया का राज हो गया है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। रिहायशों ने भी इंतजामिया से अपील की है कि इस लावारिस नाले और सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि यहाँ के रिहायशियों की तकलीफ से हद तक कमी आ सके। कैमरामैन हसनैन के साथ फातिमा सलीम, सिटी 21। मोहतन दास मार्केट के जनरल सेक्रेटरी नासिर मकानी ने कहा है कि पहले कोरोना और अब डॉलर की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ है। गैस, बिजली, प्रॉपर्टी, हर किस्म का टैक्स देते हैं, फिर भी मसाइल हल नहीं हो रहे। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई की लहर ताजिर बिरादरी के लिए अजाब बन गई। मोहतन दास मार्केट के ताजिर भी महंगाई की लपेट में। जनरल सेक्रेटरी मोहतन दास मार्केट नासिर मकानी का कहना है कि कराची 70% रेवेन्यू देता है। कराची की वजह से पूरा मुल्क चलता है, मगर यहाँ के लोगों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? टूटी फूटी सड़कें, पार्किंग और सेवरेज के मसाइल जूं के तू हैं। कराची को कोई सहूलत है? आज बताएं आपके पास कोई कराची में सहूलत है? पूरी रोड है, पार्किंग है, गटर का निज़ाम अच्छा है। इधर कौन सा टारगेट किलिंग देख लें, चोरी डकैतियाँ देख लें। दुकानदार ने महंगाई की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने पर रोदात बयान कर दी। मार्केटों में मसाइल तो है, एक महंगाई का दौर है, लोग बहुत परेशान है, फिर ताजर बिरादरी बहुत परेशान है। $1 कुछ लोगों ने मार खाया और ताजर लोगों ने, डॉलर बहुत महंगा है। इधर मेरी जो कपड़ा है रोज़ बरोज़ महंगा ऊपर जाता है,
आज एक रेट है, जैसे मेरे सदर साहब कहता था आज एक रेट है कल दूसरा रेट है। ये सब डॉलर का वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। मोतनदास मार्केट में ज़्यादातर फरोख्त इम्पोर्टेड कपड़ों की होती है, मगर हालिया दिनों में इम्पोर्टेड सामान पर टैक्सेस ने यहाँ का कारोबार भी मुतासिर किया है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा मेमन, सिटी 21। आपको बताएं कि महकमे आबपाशी में बड़े पैमाने पर तरक्कियां दी गई हैं। 18 इंजीनियर्स को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं, जबकि कुछ अफसरान के तबादले भी किए गए हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, संघ सरकार ने महकमा आबपाशी के 18 इंजीनियर्स को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी। ये 16 ग्रेड के सब इंजीनियर्स हैं, जिनको 17 ग्रेड में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई, जिसका महकमा आबपाशी सदर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वालों में मोहम्मद सुलेमान, शेख शाहजहान, सैयद अहमद शाह, मोहम्मद हुसैन, अयाज अली, मखदूम अली अहमद, सैयद खान मोहम्मद, अहमद अली, उनेब रुखसार, इसके अलावा मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद राशिद मेमन, फ़हीम मखदूम, तारिक नूर अली, मुमताज़ अली, फरह नाज, जयप्रकाश और अब्दुल वकार जो शामिल है, जिनको अगले 17 ग्रेड में तरक्कियां देकर महकमा आबपाशी ने इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रुपए पर दबाव बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा होकर 225 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे, यूरो 1 रुपये, बरतानवी पाउंड 2 रुपये, अमाराती दिरहम 60 पैसे और सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डार का डर किसी काम न आया, रुपया मुसलसल कमजोर, डॉलर का जोर। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 225 रुपए 12 पैसे से बढ़कर 225 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.12% कमी हुई। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज पर रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर और दीगर करेंसी महंगी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 259 रुपए और बरतानवी पाउंड 200 रुपए महंगा होकर 299 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में मार्सी दरम 60 पैसे महंगा होकर 68 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर 65 रुपए 70 पैसे पर जा पहुंचा। अशरफ खान, सिटी 21। सनअतकारों ने वफाकी हुकूमत के मार्केट्स और शादी हॉल्स जल्द बंद करने के फैसले को मईशत के लिए दुरुस्त करार दे दिया। काटी के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि मार्केट को रात 8 के बजाय शाम 6 बजे बंद कर देना चाहिए और ताजर मार्केट सुबह 9 बजे तमाम मार्केट्स खोल भी लें। अशरफ खान की रिपोर्ट। मौजूदा मुआशी और माली मुश्किलात पर वफाकी हुकूमत का एनर्जी सेविंग प्लान का ऐलान। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत का एनर्जी सेविंग प्लान दुरुस्त फैसला है। ये भी कहा कि मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह से हम सबको सेविंग की तरफ बढ़ना होगा। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान बिजली बनाने पर फर्नेस ऑयल और दीगर फ्यूल दरामद करता है और इस वक्त पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला भी बचाना है और अखराजात भी कम करना है। हम जितनी बिजली बना रहे हैं उसके लिए हम फर्नेस भी इंपोर्ट करते हैं, हमसे पेट्रोल भी इंपोर्ट कर लेते हैं और इतना महंगा पेट्रोल और जब वो इंपोर्ट करते हैं तो आज की तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम इस वक्त अय्याशी कर रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके कर्जों के बोझ इतने बड़े हुए हैं और हम जो है रात को 11 मतलब सुबह 11 बजे सो के उठते हैं और रात को 11 बजे तक हम कारोबार के ऊपर बैठे रहते हैं। साबिक सदर काटी ने कहा है कि पूरी दुनिया में सर्दियों में दिन में ज्यादा काम होता है। ये भी कहा है कि कराची में ज्यादातर मार्केट्स 12 बजे तक खुलती हैं, जो दुरुस्त नहीं। मार्केट्स को रात 8 बजे नहीं 6 बजे ही बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है 8 बजे, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसको 8 बजे नहीं, इसको 6 बजे बंद हो जाना चाहिए। और आप देखें, बड़े अफसोस की बात यह है कि सर्दियों के मौसम के अंदर अभी जैसे आजकल 6 बजे मगरिब हो जाती है तो भी शादी हॉल जो है वो 11-12 बजे तक खुले होते हैं और मार्केट जो है 11-12 बजे तक खुली होती है। जब गर्मी का सीज़न आता है, जब मगरिब 7:30 बजे तक पहुंच जाती है तो भी मार्केट 11-12 बजे तक खुली रहती है, शादी हॉल 11-12 बजे तक बैठे होते हैं। जबकि पूरी दुनिया के अंदर डे लाइट सेविंग जब चलती है तो वो उसी मौसम के हिसाब से अपने 1-1 घंटे को 2-2 घंटे को
आगे पीछे करते रहते हैं। राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि मार्केट को सुबह जल्द खोलने पर अमल करना होगा और कोशिश होनी चाहिए मार्केट्स 9 बजे सुबह तक खुल जाएं ताकि मगरिब तक बआसानी कारोबार हो सके। ये भी कहा कि एनर्जी सेविंग प्लान पर हुकूमत को पूरे साल ही अमल दरामद कराना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची में सर्दी बढ़ते ही लोगों ने सूप की दुकानों का रुख कर लिया है। शहराए लियाकत पर मौजूद सैफी चिकन कॉर्न सूप शहरियों में मकबूल हो गया है। अक्सर शाहिद मजीद बता रही हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो ठंड की लहर काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो शहरियों ने भी गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और सूप तो शहर कायद के लोगों का शुरू से ही पसंदीदा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के रोड शहर लियाकत की दुकान सैफी चिकन कॉर्न सूप पे, जहाँ आपको मेरे अगब में शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो सूप पीते हुए नज़र आ रही होगी। मेरे साथ यहाँ के मालिक मौजूद हैं सैफी कॉर्न सूप के, उनसे जानेंगे सर हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। ये पुरानी शॉप है हमारी, इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं और क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है हम लोग ने, इस वजह से लोग हमारे पास आते हैं। सर तो कितने साल से आपकी ये दुकान यहाँ पर जो है मेंटेन है और मतलब ऐसे क्या आपके ग़िज़ाई अज्जा हैं जो लोगों को पसंद आते हैं? ये 20 से 25 साल हो गए इसको यहाँ पे है और जो है वो हम क्वालिटी पे ये है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कोई ऐसे ख़ास मसाले आपने अपने हाथों से बनाए सूप के लिए बना के रखे हुए हों? ये सारे मसाले हम खुद ही बनाते हैं, कोई भी बाज़ार का मसाला इसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके पास कौन कौन से मेन्यू है सूप? सूप में हमारे पास चिकन कॉर्न सूप है, चिकन पापड़ी सूप है, चिकन अंडा सूप है, चिकन अंडा पापड़ी सूप है और यखनी सूप है। उमूमन लोग कौन सा सूप ज़्यादा पीने आते हैं आपके पास? यहाँ पे जो हमारे स्पेशलिटी में जो है वो चिकन अंडा पापड़ी सूप है। बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि इनके पास लोग जो हैं वो चिकन अंडा पापड़ी सूप ज़्यादा पीने आते हैं। इनके पास मेन्यू में ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं, पर जो मुख्तसर से हैं वही लोगों को बहुत पसंद आते हैं। साथ ही इनका ये कहना है कि ये क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को जो है इनका सूप बेहद पसंद है। जी, और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।